اس کا عنوان ہے، یہ کہانی یا افسانہ سمجھ لیجئے، بوڑھا اور شہر۔ ڈاکٹر نے سوچا بوڑھا مر رہا ہے۔ ڈاکٹر کے ذہن میں بوڑھا کبھی بوڑھا نہیں تھا۔ ڈاکٹر اور بوڑھے کا بچپن سے تعلق تھا۔ بچپن جب ڈاکٹر بچہ تھا اور بوڑھا بوڑھا نہ تھا۔ آج جب بوڑھا مر رہا تھا تب بھی ڈاکٹر کے ذہن میں اس کا عکس کئی دہائیوں قبل کا تھا۔ پیچھے کو سنوارے بال، ذہانت کا اظہار کرتی گہری آنکھیں، کالے فریم کی اینک لگائے مسکراتا جوان چہرہ جس پر بچپن کی کسی شرارت کی عطا میں ماتھے کی ایک جانب گہرے زخم کا نشان تھا۔ ڈاکٹر کے لیے وقت اسی منظر پر رکا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کو علم نہیں تھا کہ یہ عکس تھا یا نقش تھا۔ یہ نقش ہی ہوگا۔ عکس تو بدل سکتا ہے مگر نقش نہیں بدلتا۔ مگر یہ نقش چپکے بنا تھا۔ نقش جو عکس تھا اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ یہ کپڑے پر لگایا گیا ٹھپا نہ تھا کہ ایک ضرب کے ساتھ ہی چھپ جائے۔ یہ تو وقت کے ساتھ آئی جھریوں کی مانند چپ چاپ روح میں اترتے نشان تھے، پکے، گوڑے، انمٹ، شناخت کے طور پر لکھی گئی علامت، ذہن پر کندہ کی گئی پکی تحریر، احرام مصر سے نکلنے والی ڈھیٹ تحریر جو سمجھ میں نہ آئے مگر ہر حالات میں صدیاں سہال لیتی ہے۔ یہ نقش تھا۔ ڈاکٹر کے لیے بوڑھا بوڑھا نہ تھا۔ ڈاکٹر کو یاد نہیں کہ کب وہ بوڑھے سے پہلی دفعہ ملا تھا۔ شاید وہ پہلا دن تھا جب ساتھ کے میدان میں کرکٹ کھیلتے گیند پڑوس کے گھر کے صحن میں جا گری تھی اور دروازے پر دستک دے کر ایک بچہ گھبرایا کھڑا تھا۔ 7 سال کے بچے نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی تو اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلا اور بچے نے وہ مسکراتا چہرہ دیکھا تو اس کی پریشانی یکایک کم ہو گئی تھی۔ صحن سے گیند اٹھاتے اس بچے نے دیکھا تھا کہ گھر میں کئی پھلوں کے درخت لگے تھے۔ ایک جانب گلاب کا کنج تھا۔ اس دن بچے کو گیند کے ساتھ تازہ اترے 2 کنو بھی ملے تھے۔ اس دن وہ بچہ اس گھر سے گیند و کنوؤں کے ساتھ ایک تعلق بھی اٹھا لایا تھا۔ لوگ اس مسکراتے کے پاس کہانیاں سننے آتے تھے جس نے نفسیات پڑھی تھی اور انسانیت جانی تھی۔ شام کو اس گھر کے صحن میں بیٹھک لگتی تھی، محبتوں اور جدائیوں کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں۔ اس شاعر خیال کے پاس لوگ آتے تھے، برداشت رواداری پر بات ہوتی تھی۔ ڈاکٹر نے اس مسکراتے چہرے کو کئی جگہوں پر دیکھا، لائبریری میں کتاب پڑھتے، چائے خانے میں دوستوں کی محفل میں لطف اٹھاتے، باغ میں صبح کی سیر کرتے، صحن میں پودوں کو پانی دیتے، بیٹھک میں مذہب، انسان، کائنات سب کو ایک لڑی میں پروتے۔ ڈاکٹر نے اس سے کئی کہانیاں سنی تھیں، تحیر آمیز، دل آویز، خوش کن، حیران کن۔ وہ کن کی ایک کڑی تھا۔ دوسرے کی بات وہ خوش چہرہ غور سے سنتا تھا اور اپنی بات آرام سے کہتا تھا۔ کبھی اس کی آواز اونچی نہ ہوئی کہ وہ دلیل سے بات کرنا جانتا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ عرصے بعد جان لیا کہ وہ انسان کو فوقیت دیتا ہے، اکثر بحث کو مسکرا کر چھوڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر کو سمجھ آ گئی کہ اس گھر سے وہ اکیلا ہی نہیں اور بہت سے بھی کیوں تعلق اٹھا لاتے ہیں۔ سالہ سال کے بعد وہ تعلق ڈاکٹر کے سامنے آئی سی یو میں پڑا تھا۔ بوڑھے کا ذہن کام کرنا چھوڑ رہا تھا، اس کا دل رک رہا تھا، اس کی شریانوں میں خون کا بہاؤ رکاوٹ کا شکار تھا، اس کی سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر دل گرفتہ تھا، مگر اپنے شعبے میں اس نے بہت سے اجنبیوں اور تعلق داروں کو مرتے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر کو علم تھا کہ طب کا شعبہ قربانی مانگتا ہے، آنسو روکنے اور جذبات قابو کرنے کا سوال کرتا ہے۔ ڈاکٹر
मजबूत एसाब का मालिक था। उसने पिछले चंद सालों में बहुत कुछ देखा था। जख्मी और रोती माएं, कटे हुए बाजुओं के साथ लाए गए बच्चे जो त्योहार के दिन पार्क में झूले लेने गए थे और बम धमाके का शिकार हो गए। उसने खुद कुछ हमलों के जख्मियों पर मरहम रखा था। उसने फिरका वाराना हमलों के जख्मियों की पट्टियां करते खून से अपना सफेद ओवरकोट रंगदार किया था। तमाम इंसानी कोशिश के बावजूद मर जाने वाले बेकसूरों की आंखें डॉक्टर ने अपने हाथों से बंद की थीं। वो खुद नहीं रोया था कि अगर वो रो पड़ा तो उसे चुप कौन कराएगा। मगर उस दिन आईसीयू में ये पड़े अपने पुराने ताल्लुक को देखकर डॉक्टर बहुत अफसुर्दा था। अफसुर्दा, मगर रोया वो फिर भी ना था। डॉक्टर अस्पताल से निकला और अपनी कार चलाकर घर की जानिब चल निकला। वो कुछ ही मोड़ मुड़ा था कि उसने देखा कि ट्रैफिक बुरी तरह फंसी है। लोग अपनी गाड़ियां आगे निकालने के चक्कर में अपने मुकाम से उतर चुके हैं। इंसानियत और सड़क दोनों मुकामात से उतरी थी। अगर दाएं छोड़कर लोग बाएं मामूली सी भी जगह पाएं तो वहां गाड़ी घुसेड़ रहे थे। गच्चे में मिट्टी उड़ाते घुसे चले जाते थे। मोटरसाइकिल सवार मामूली सी जगह देखकर अपनी बाइक घुसा रहे थे। कुछ अपनी मोटरसाइकिल उठाकर सड़क की दरमियानी बटवार को अबूर करके मुखालिफ समत से आने वाली ट्रैफिक में रवाना हो गए थे। दूसरी जानिब भी शायद ट्रैफिक जैम था कि ट्रैफिक ना आ रही थी। तो कुछ देर बाद वो एक राह पाकर गाड़ियां भी सामने से आने वाली सड़क पर जा घुसी। ट्रैफिक का बहाव पहले हल्का चल रहा था, फिर बुरी तरह रुकावट का शिकार हो गया। डॉक्टर तो सुबह से अफसुर्दा था। यह हालात देखकर वो अफसोस की किसी निचली सतह पर पहुंच गया। फजा बहुत आलूदा थी। धुएं में सांस लेने से दुश्वारी हो रही थी। डॉक्टर ने गाड़ी के शीशे चढ़ा दिए, मगर वो एयर कंडीशन नहीं चलाना चाहता था कि ना जाने अभी कितना वक्त इसी सड़क पर गुजरना था। उसने आसपास के लोगों पर नजर डाली। सब चिड़चिड़ाहट का शिकार थे। एक दूसरे को बुरा भला कहते, गालियां देते, खांसते, जलाहट का शिकार हुए, दूसरे का हक मारकर आगे निकलने की कोशिश में थे। डॉक्टर को वो आम समझबूझ से आरी नजर आ रहे थे, जो अपनी हरकत से ट्रैफिक की खराबी में इजाफा कर रहे थे। डॉक्टर ने सोचा, क्या इनका दिमाग काम नहीं करता? ये अपनी ही शाख को काटते लोग हैं जो अपना नुकसान करने पर तुले हैं। चिड़चिड़ाहट का शिकार, गालियां देते, समझ बूझ से आरी एक हजूम चल रहा था। डॉक्टर ने सोचा कि क्या ये जिंदा है? उसे पता था सांस ले पाने का मतलब जिंदा होना तो नहीं होता। उसी वक्त उसकी गाड़ी को किसी ने पीछे से टक्कर मार दी। वो गाड़ी से उतरा। शुक्र था कि रफ्तार हल्की होने की बिना पर मामूली नुकसान था, मगर दूसरी गाड़ी का ड्राइवर शदीद गुस्से में था। वो डॉक्टर को गालियां दे रहा था। बज़ाहिर वो खुश लिबास आदमी पढ़ा लिखा लग रहा था, मगर उसकी जबान कुछ और ही बता रही थी। डॉक्टर को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। क्या इस आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा कि गाड़ी को उसने पीछे से टक्कर मारी और गालियां भी वही निकाल रहा था? डॉक्टर को आईसीयू में पड़े बूढ़े के बर्ताव का ख्याल आया। उसने उलझे बगैर बदतमीज शख्स से माफी मांगी और अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को रेंगती रफ्तार से आगे बढ़ाने लगा। डॉक्टर पहले ही अफसुर्दा था और मजीद अफसुर्दा हो गया। रेंगती गाड़ी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सामने आ गई थी। यूनिवर्सिटी के बाहर तलबा मुजाहिरा कर रहे थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक का मसला बना था। तलबा ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। उन्हें सब्ज बाग दिखाकर ऐसे शोबों में दाखिले दिए गए थे जिनकी मांग है, मगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो डिग्रियां देने की इजाजत न रखती थी। साला साल इन तलबा से फीसें इकट्ठी की गई थी या लूटी गई थी। कोर्स मुकम्मल हो गए, डिग्रियां दे दी गईं, मगर इन डिग्रियों के कागज की टुकड़ों से भरकर कोई अहमियत न थी। माँ बाप के खून पसीने की कमाई लुट गई थी।
साला साल गुजर गए, कोई उनकी सुनवाई न थी, उनकी बात कोई ना सुनता था। यूनिवर्सिटी के मालिक ने तलबा से ऐंठे पैसों से एक टीवी चैनल चला लिया था। तालीम की बंदर बांट के साथ साथ अब वो ब्लैकमेलिंग से पैसे कमा रहा था। उस टीवी चैनल के एंकर्स मालिक के हुक्म पर किसी की इज्जत की धज्जियां उधेड़ते एक लम्हा को ना रुकते थे। उनके शर्त से दयानतदारी से काम करने वाले अफसर और इदारे कोई महफूज ना थे। डॉक्टर ने सोचा कि क्या उनका ज़मीर जिंदा है? क्या किसी पर जुल्म करते हुए उनके दिल की धड़कन अपनी रफ्तार से आगे पीछे नहीं होती? आम लोगों के पैसे हथियाते कैसे किसी को कोई एहसास नहीं होता? क्या उन्हें औलाद की तालीम के नाम पर माँ बाप के मुंह से नवाला छीनते एक लम्हे की कपकपाहट भी नहीं हुई? ये जिंदा हैं या मुर्दा हैं? डॉक्टर पहले ही अफसुर्दा था और मजीद अफसुर्दा हो गया। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। डॉक्टर की गाड़ी रेंगते रेंगते बिलाखिर इस यूनिवर्सिटी के आगे से गुजर गई। आगे एक बड़ी इमारत जेर तामीर थी। इस जगह कुछ अरसा कब्ल तक खेल का मैदान था, जहां बच्चे क्रिकेट खेलते थे। सुबह को बुजुर्ग खवातीन हाथ में तस्बीहां पकड़े सैर करती नजर आती थीं। शाम को कोने में जूडो कराटे के उस्ताद अपने शागिर्दों को तैयार कर रहे होते थे। शाम के बाद लोग आकर गपशप लगाने बैठ जाते थे। लूडो और ताश की बाजियां लगती थीं। लोग हंसते और एक दूसरे के रोने में शरीक होते थे। हर रोज मैदान के एक जानिब एक बांसुरी नवाज अपने शागिर्दों को धुनें सिखाने लग जाता था। डॉक्टर के ख्याल में बांसुरी की आवाज गूंजने लगी। अफसुर्दा, बल्कि बहुत अफसुर्दा होने के बावजूद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। डॉक्टर ने सोचा, ये तो इस कदीम शहर की तहजीब का हिस्सा है। ये बूढ़ा शहर भी डॉक्टर के दिल पर नक्श था। गूढ़ी, अनमिट, पक्की तहरीर के साथ नक्श था। इस बागों के शहर की तहजीब में किस्सा गो जा बजा बैठते थे। लोगों के दिल खुले थे। लोग इंसान को इंसानियत से जानते थे। फिरका बंदी कहीं न थी। एक फिरके के जुलूस में दूसरे फिरके के लोग सबीलें लगाकर प्यासों की प्यास बुझाते थे। टी हाउसेस में लोग बैठकर अदब की बात अदब से करते थे। बागों के शहर में फिर ऐसी रुत बदली कि बाग कंक्रीट से भरे जाने लगे। बागों की जमीन हथियाली गई। वो खवास जिन्हें आम लोगों के हकूक के लिए चुना गया था, उन्होंने ही आमियों से साफ हवा छीन ली। कहीं एमपी हॉस्टल बन गए, कहीं लैंड माफिया और खवास की मिली भगत से बागात की जमीन पर प्लाजे और कमर्शियल इमारत कायम कर दी गईं। डूंगी ग्राउंडें इमारती मटीरियल से भर गईं। शहरियों की सैर और बच्चों के खेल की जगह पर हाजी कैंप के बोर्ड लगाकर मखलूक की पहुंच से बाहर कर दिया गया। बाग खत्म हो गए तो आलूदगी बढ़ गई। शहर में सांस लेना दूभर हो गया। मोहल्ले मोहल्ले में लाइब्रेरियां थी। लोग किताबें पढ़ते थे, सोचते थे, मिलकर बात करते थे, इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना सीखते थे। कॉलेजों के शहर में तालीम अभी कमर्शियल ना हुई थी। उस्ताद पढ़ाते थे और शागिर्द पढ़ते थे, और इसी पढ़ाई लिखाई में एहतराम का रिश्ता कायम हो जाता था। पक्का खलूस का रिश्ता जो वक्त फासले की पैमाइश से कहीं आगे बढ़कर हमेशा कायम रहता था। खुराक अभी फूड चेन्स का हिस्सा न बनी थी। पड़ोसी पड़ोसी को जानता था। डॉक्टर को वो रात याद थी जब वो मजीद तालीम के लिए बैरून मुल्क जा रहा था। रात 1 बजे एयरपोर्ट के लिए जब वो घर से निकल रहा था, तो पड़ोसियों के दरवाजे खुल गए थे और उसके सर पर हाथ फेर कर दुआ देने वाले बुजुर्ग सिर्फ उसके अपने घर के न थे। अचानक डॉक्टर को अजब ख्याल आया कि बूढ़ा और शहर एक ही हैं। उसे अदराक हुआ कि शहर के तमाम आजाद जवाब दे रहे हैं। बागात खत्म हुए हैं तो शहर का सांस रुकने लगा है। शहर के फेफड़ों में धुआं भर आया है। सड़कों पर रुकी ट्रैफिक बूढ़े के जिस्म में खून की रुकावट की मानंद है। जल्द ही जिस्म फूल जाएगा और वर्म जा बजा होंगे। शहर का दिमाग काम करना छोड़ गया है। जाली दानिश्वर, फिरका परस्ती फैलाते मुल्ला, पैसे के इशारे पर प्रोग्राम करते एंकर, सबसे पहले हमारे मुफाद के दाइयों, अगरास के पुजारी खवास, सबने मिलकर इकदार बदलने में अपना किरदार अदा किया है और सोच पामाल कर दी है।
وہ جو خدمت پہ معمور تھے وہی غاصب بن گئے. پیسے کی لوٹ کی چاہ نے قلب سیاہ کر دیے. ڈاکٹر کو نظر آنے لگا کہ شہر کا دل سیاہ کے ساتھ ساتھ مردہ ہوتا جا رہا ہے. ڈاکٹر کا شہر سے محبت کا پرانا تعلق تھا. جب وہ گھر پہنچا تو وہ رونے لگا. اس کی بیوی نے جب اسے روتا دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی. ڈاکٹر مضبوط اعصاب کا مالک تھا. اس کی بیوی نے اسے کبھی روتے نہیں دیکھا تھا، مگر اس وقت ڈاکٹر روتا جاتا تھا اور بار بار یہی کہتا تھا، بڑا نقصان ہونے والا ہے، بوڑھا مر رہا ہے، بوڑھا مر رہا ہے. بس شکریہ. بہت خوبصورت.